Hello students. So students, in the last part of the video, we have learned how to solve linear equation, linear inequality in one variable with the help of algebraic method as well as graphical method. Graphical method means the solution can be represented on the number line as I have told you in the previous class, okay? So by that method, we are able to solve linear inequalities in one variable, okay? Students, your exercise 6.1 from NCERT is based upon solution of linear equation in one variable only, okay? So today we are going to discuss few important questions of exercise 6.1, okay? So student, first question you can easily do, and this type of question I have already told you in the example, okay? So first question you can do. Second question is also same but little bit different. So I am going to solve the first part of second question, okay? So see, today we are going to start exercise 6.1. Okay? Now, second question, we have to solve an inequality. Solve minus 12x is greater than 30 when first part is x is a natural number, okay, and the second part is x is an integer. So first we will solve the first part of question number second. So first we will solve like this, okay? So whatever questions are given student, just you solve by this only, okay? So question is that minus 12x is greater than 30, okay? So we know now कि inequality we can divide any number to the both side. If we will dividing positive number to the both side, then the sign of inequality does not change. But when we divide by the negative number to the inequality, then the sign of inequality changes. Okay, so we have to find for x now. We have to find for x means we have to find the solution of x. So for getting the solution of x, what I am going to do, dividing by minus 12, okay? Dividing this inequality by minus 12. So when I will divide this inequality by minus 12, so minus 12x by minus 12, okay, and here will be 30 by minus 12. And I told you, whenever we multiply or divide a inequality by a negative number, then the sign of inequality changes. So here is the greater than sign, so it will become in the less than sign, okay? Now this minus cancel, so 12 upon 12, this will be x only, and x is less than minus 30 by 12, okay? Now minus 30 by 12, this can be written as x is less than minus 5 by 2, okay? X is less than minus 5 by 2. We got the solution like this, okay? Now student, we will move to our first part. The first part is that x is a natural number, okay? X is natural number, okay? X is natural number. For first case, we have to find the value of x, okay? So see, the value of x is less than minus 5 by 2, okay? The value of x is less than minus 5 by 2, and in the first part it is saying that x is a natural number. We all know that natural number starts from 1. We all know that natural number starts from 1, 1, 2, 3 and so on. But here, by solving this inequality, we get x is less than minus 5 by 2. मतलब कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो minus 5 by 2 से कम होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव ही होनी चाहिए. लेकिन पहले केस में हमको किसके लिए फाइंड करना है? नेचुरल नंबर के लिए. तो इस केस में हमें कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा स्टूडेंट. Whenever you will see x is less than minus 5 by 2. इसको मैं अगर आपको ग्राफिकली बताऊं, so here will be 0 and minus 5 by 2 will come, suppose here minus 5 by 2, and whatever here will be minus infinite, here will be in the extreme plus infinite, ठीक है? Now minus 5 by 2 से कम लेना है, x is less than ना, less than का मतलब minus 5 by 2 से कम लेना है, तो हमको इधर ही मूव करना पड़ेगा इस साइड में.
लेकिन जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो क्या आपको इस केस में कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं, इस केस में आपको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, बिकॉज वी वांट नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बट बाय सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी वी कैन से that we will not get any natural number which is less than minus 5/2. So in this case the answer will be no solution. We will not get any value of x for this situation. ठीक है, जब x नेचुरल नंबर होगा। Now second case देखते हैं। Second case is that x is an integer. x is an integer. ठीक है, तो अगेन इनइक्वालिटी तो आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद केसेस के हिसाब से x की वैल्यू बताओगे। तो अगेन फिर से अगर मैं नंबर लाइन ड्रा करूं, here will be 0, here will be plus infinite, here will be minus infinite and minus 5/2 will come in the left side of 0. ठीक है, what is the value of minus 5/2 student? minus 5/2 is equal to minus 2.5. तो हमें minus 2.5 से कम का लेना है x की वैल्यू, और जो कि क्या होना चाहिए, इंटीजर, जो कि क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो minus 5/2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -3, देन -4, देन -5, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा लेकिन वो इंटीजर होगा। तो इस केस में हमको सोल्यूशन मिलेगा। सो द सोल्यूशन ऑफ x, द सोल्यूशन ऑफ x, द सोल्यूशन ऑफ x, क्योंकि हमको इंटीजर चाहिए जो कि -5/2 से कम हो, तो -5/2 से कम इंटीजर क्या होगा, डॉट 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 -4 -3 अप टू हेयर ओनली। ठीक है, इसके आगे भी होगा क्योंकि -5/2 से कम ना, तो -5/2 यानी कि -0.25, सॉरी 2.5, नेगेटिव में 2.5, तो -2.5 से कम का इंटीजर कौन सा होगा, 3 होगा, -3 होगा, -4 -5। तो इसलिए मैंने इसको डॉट 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 लिखा है, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में -4 एंड -3। तो इस केस में हमको f का सोल्यूशन मिलेगा जो कि ये होगा। ठीक है, पहले केस में सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि x की जो वैल्यू आ रही थी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद वो आ रही थी लेस देन -5/2, और पहला केस ये दिया हुआ था कि x नेचुरल नंबर है। तो क्या आपको नेगेटिव में कोई भी नेचुरल नंबर मिलता है, नहीं मिलता है। तो इस केस में, पहले वाले केस में हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन सेकंड केस में हम जानते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो -5/2 से छोटा इंटीजर कौन कौन से होंगे, -3 -4 -5 -6 -7 अप टू -infinite. So the solution of this will be in curly braces dash 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 -4 -3 closed. -3 के बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि -3 के बाद लिखोगे आप तो -2 आएगा, और -2 -3 से बड़ा होता है, और जो कि -2 इस -5/2 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए -3 तक ही जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट, ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लोगे। तो ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 is very simple. ठीक है, now one more thing student, I will tell you only selected questions because whatever method I told you that is sufficient to solve this exercise. Okay, so go through the first and second part of this chapter and then come to the third part. Now fourth question is also I told you. Now 4 5 6 7. So out of 4 5 and 6 7 I will 4 5 5 6 and 7 8 up to question number 4 you can easily do, and from question number 5 to question number 16 we also find the value of x. Okay, so same question is there. So what we will do student, I will tell you from question number 5 6 and 7 8 I will tell you two questions. Okay, now question number 5 I will tell you and question number 7 I can tell you. When I will tell you question number 5 then you can easily solve 6, and when I will tell you question number 7 then you can easily solve 8. Okay, so fourth I am telling, fifth part I am telling, fifth question. Okay, solve for real x. Solve for real x means here we will assume that here the x is real number. Okay, in the previous part
the condition of x was given, that is x is a natural number, x is a integer and so on. But from question number 5 to question number 16 we have to take x as real number. Okay, so fifth question of your book is that 4x plus 3 less than 5x plus 7. ठीक है, this is, so again same thing I told you, in any inequality we can add any number to both the side and the addition or subtraction of that number does not affect the inequality. मतलब कि inequality में हम दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं और कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कोई भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो देखो आप क्या करो, ऐसा जब क्वेश्चन है कि दोनों साइड x रहे तो आप एक साइड x को ले आओ, बस एक साइड केवल x रहना चाहिए और एक साइड केवल नंबर रहना चाहिए. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड मेरा x रहे, तो मैं इस वाले x को रिमूव करना चाहता हूं, राइट साइड वाले को. तो व्हाट आई विल डू, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 5x. ठीक है, subtract both side by 5x. So what I will do, 4x plus 3 minus 5x will come in this side and 5x plus 7 minus 5x will come this side. ठीक है, तो see 4x minus 5x it will become 3 minus x. ठीक है, और इस राइट हैंड साइड में 5x और 5x कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर अपोजिट साइड, तो 7 will left only. ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला आपको कि लेफ्ट साइड में केवल वेरिएबल रहना चाहिए जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है, मतलब कि x रहना चाहिए. तो मैं चाहता हूं कि इस साइड जो 3 आ रहा है 3 ना रहे, तो मैं अब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3 दोनों साइड. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3 दोनों साइड, तो 3 माइनस x माइनस 3 इज लेस देन 7 माइनस 3, और यहां लिख देना सब्ट्रैक्ट 3 इन बोथ साइड. Now 3 minus 3 will be cancelled, so minus x will be left here and 7 minus 3 will become 4. ठीक है, अब देखो ये माइनस x है ना, मुझे माइनस x माइनस नहीं चाहिए, मुझे केवल x चाहिए. तो मैं दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो अगर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 नेगेटिव नंबर है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. तो हियर विल बी x ओनली, this will become like this only and this will become -4, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा multiply by -1. ठीक है, now this we will get. यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया. अब मुझे केवल x चाहिए था, तो मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया. इसको करोगे तो ये x बन जाएगा, इसको करोगे तो ये -4 बन जाएगा, और ये इस वाले साइन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन -4. ठीक है, अब इसको समझो कैसे, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं नंबर लाइन से. अगर आपने नंबर लाइन से करना सीख लिया तो आपको सोल्यूशन लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी. ठीक है, अब ध्यान दो, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट, लाइक दिस. समझो कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे है, x इज ग्रेटर देन -4 ना, तो मान लो ये 0 है, इधर क्या होगा -∞ और इधर क्या होगा +∞. ठीक है, -4 किधर आएगा, लेफ्ट साइड, तो -4 कहीं यहां पर होगा. ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन -4, इसका मतलब ये होता है जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट मतलब या तो ग्रेटर देन साइन होता है या तो लेस देन साइन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. मैंने आपको बताया था, स्ट्रिक्ट मतलब कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करेगा. ऐसे इनइक्वालिटी साइन को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. तो x इज ग्रेटर देन -4 मतलब कि x जो होना चाहिए वो -4 से बड़ा होना चाहिए. x जो होना चाहिए वो -4 से बड़ा होना चाहिए. तो -4 हमको नहीं लेना है, लेकिन -4 से बड़ी सारी वैल्यू लेनी है. तो बड़े नंबर क्यों किधर होते हैं, -4 के इधर छोटे नंबर होंगे और -4 के इधर बड़े नंबर होंगे, क्योंकि किसी नंबर लाइन पे राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा होता है. तो देखो -4 हमको नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप ओपन सर्कल बनाओ. ओपन का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू हमको लेनी नहीं है. ठीक है, वो वैल्यू हमको लेनी नहीं है. ठीक है, तो -4 से बड़ा लेना है, तो मतलब -4 से बड़ा इस साइड आएगा, -4 से बड़ा इसी साइड आएगा, राइट साइड ऐसे आएगा. अब मुझे देखो जरा ध्यान से,
यहाँ पे ओपन सर्कल है, दिस सर्कल इज नोन एज ओपन सर्कल, जिसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो -4 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, कहां तक ले सकते हैं हम लोग, प्लस इनफाइनाइट तक ना। तो जो सोल्यूशन होगा, द सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ x, द सोल्यूशन सेट ऑफ x, कैसे लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में -4 नहीं लेना है, तो -4 पे ओपन इंटरवल, और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट पे भी ओपन इंटरवल। अब देखो ध्यान से, दोनों पे ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि x -4 से बड़ा है, तो -4 तो लेंगे नहीं, यानी कि -4 विल बी एक्सक्लूडेड, जहां एक्सक्लूडेड होता है वहां पे ओपन इंटरवल लगाते हैं, और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ही होता है, तो दैट इज आल्सो ओपन, ठीक है। तो द सोल्यूशन ऑफ x विल बी -4 टू इनफाइनाइट, मतलब कि -4 से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे, इसका मतलब यही होता है, -4 से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ x, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन ऑफ योर बुक, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नंबर लाइन से करोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। इतना बस याद रखो, कोई नंबर है अगर, तो नंबर के राइट साइड में नंबर बड़ा होता है और नंबर के लेफ्ट साइड में नंबर छोटा होता है उस नंबर से, ठीक है। इधर जितने भी नंबर आएंगे वो -4 से बड़े होंगे, और इधर जितने भी नंबर आएंगे वो -4 से छोटे होंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो नोट डाउन इट। Now student, after solving question number 5, like question number 5, question number 6 is also same. So with the help of question number 5, you can solve 6. So now I am going 7. When I will tell you 7, then you can easily solve 8 also. Okay. So let's solve question number 7. What is question number 7? So question number 7 is that 3 in bracket x minus 1 is less than equal to 2 x minus 3, ठीक है। वेरी सिंपल अगेन क्वेश्चन। नाउ 3 in bracket x minus 1 is less than or equal to 2 x minus 3. This is the sign which is known as slack inequality, क्योंकि ये लेस देन भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इट विल कम 3x minus 3 which is less than or equal to 2x minus 6. अगेन सेम मेथड, आप एक साइड केवल x चाहते हो तो दूसरे साइड x को रिमूव करो। कैसे रिमूव करोगे, अगर दोनों साइड 2x को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हियर इट विल कम 3x minus 3 minus 2x, and here it will come 2x minus 6 minus 2x। क्या किया मैंने, 2x को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी में या तो हम कोई नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो सब्ट्रैक्ट 2x इन बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ सो व्हाट विल कम इन द लेफ्ट हैंड साइड, 3x minus 2x will come x minus 3, and here that is 2x will be cancelled, minus 6 will left, okay। now we have to solve for x ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में केवल चाहते हैं x ही रहे, तो x बस चाहते हैं, तो यहाँ से -3 को हटाना है, यहाँ से -3 को हमको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, +3 दोनों साइड क्या कर देंगे, ऐड। सो x minus 3 plus 3 is less than or equal to -6 plus 3। सो यहां पे लिख देना add 3 इन बोथ साइड। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ दिस 3 विल बी कैंसिल्ड, सो हियर विल लेफ्ट ओनली x which is less than or equal to -6 plus 3, -6 plus 3 will come -3। so after solving this inequality we got x is less than or equal to -3। अब सेम चीज फिर से क्या करें, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज इट इज अ नंबर लाइन, मान लेते हैं कि 0 मिड में है, 0 मिड में है, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा और इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, ठीक है, सबसे एक्सट्रीम पे। ये इसका एरो का मतलब ये होता है कि इन द एक्सट्रीम लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट एंड इन द एक्सट्रीम राइट प्लस इनफाइनाइट। नाउ
x इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो -3 किधर होगा स्टूडेंट? -3 विल बी एट दिस पॉइंट, हेयर विल बी, सपोज हेयर विल बी -3, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू -3 है, ये लेस भी है, x की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी भी है और -3 के बराबर भी है। इसका मतलब ये होता है x इज लेस देन और इक्वल टू -3, मतलब कि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी होती है ना, और जहां भी स्लैक इनइक्वालिटी होती है मतलब कि वो वैल्यूज भी हम लेते हैं। इसका मतलब आपको पता है ये x इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि x -3 से छोटा भी है और x -3 के बराबर भी है। तो बराबर भी है ना, तो जब बराबर होता है तो उसका मतलब वो वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो वहां पे डार्क सर्कल बनाते हैं। जब नहीं लेना होता है तो ओपन सर्कल बनाते थे, जब लेना होता है तो डार्क सर्कल, और x की वैल्यू -3 के बराबर, यानी कि -3 के बराबर और उससे छोटी, तो उससे छोटी लेफ्ट हैंड साइड में तो होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी। यही सोल्यूशन होगा ग्राफिकल में, ठीक है, जो मैंने ब्लू से कर रहा हूं मैं, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ x। सो द सोल्यूशन ऑफ x, द सोल्यूशन ऑफ x को कैसे लिखेंगे? अगर इंटरवल में लिखना होगा तो ब्रैकेट का यूज करके, तो मिनिमम कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो देखो मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं हम लोग, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम कहां है? माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल, क्योंकि इनफाइनाइट हम लोग लेते ही नहीं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। और कहां तक जा रहा है? -3 तक, तो -3 तक, और -3 पे कौन सा इंटरवल होगा? -3 पे कौन सा इंटरवल होगा? क्योंकि x की वैल्यू -3 के बराबर भी है ना, मतलब कि 3 -3 वही हमको लेना है। वैल्यू ऑफ -3 we will also take, means -3 will also be included, और अगर इंक्लूडेड है तो जब इंक्लूडेड होता है तो वहां पे क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो द सोल्यूशन ऑफ x will be -∞ to -3, माइनस इनफाइनाइट पे ओपन एंड -3 पे क्लोज। So like this student, you can solve question number 8 also, okay? So please note down it. After this, if I will tell you question number 9, then you can easily solve question number 10. ठीक है, very simple question number 9. I can solve here only. Suppose I am going to solve question number 9. Question number 8 you can solve like question number 7, and after that I am solving question number 9. So question number 9 student, x plus x by 3 plus x by 2 is less than 11, ठीक है, वही चीज है, मैंने x by 3 पहले लिख दिया, x by 2 बाद में, तो सेम ही चीज है। तो फिर से सेम क्वेश्चन, पहले आप LHS को सॉल्व कर लो, तो LHS को सॉल्व करोगे तो LCM will come 6 only, LCM will come 6 only, और 6 है तो it will become 6x plus 2x plus 3x which is less than 11, ठीक है। तो by solving this 6 plus 2 8 and 3 11, 11x by 6 less than 11। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड केवल क्या चाहिए? x ना, तो पहले मैं इस 6 को रिमूव करना चाहता हूं। ध्यान देना, इनइक्वालिटी में आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से हमेशा आंसर सही नहीं आता है, ठीक है। जब आप नेगेटिव नंबर और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इसलिए कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही मत। जो मेथड जानते हो उससे पहले मुझे सपोज करो इस 6 को हटाना है, मुझे लेफ्ट साइड में केवल x चाहिए, तो पहले मैं 6 को हटाना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे 6 को हटाना है तो मैं अगर दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, so what I will get 11x by 6 into 6 in this side and 11 into 6 this side, और यहां लिख देंगे multiply 6 in both side। अब 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। Now after this I am solving here, so left hand side 11x will left and this side 66 will be left. Now I want x only in this side, so I will divide both side by 11, so 11x by 11 which is less than 66 by 11, और यहाँ लिख देंगे divide by 11, ठीक है। तो in this side will come x and in which is less than 6,
So by solving this inequality, we will get x is less than 6. So again, you can easily write, draw a number line. It will be 0, minus infinite, plus infinite, plus infinite and minus infinite. Minus x is 6. x is 6 ना स्टूडेंट, 6. x की वैल्यू जो है वो लेस देन 6 है, तो 6 यहीं कहीं होगा. सपोज 6 यहाँ पर है, ठीक है, और x की जो वैल्यू वो 6 से छोटी होनी चाहिए. यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब कि हमको 6 वैल्यू लेना नहीं है, x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए. तो आप 6 पे ओपन सर्कल बनाओ लाइक दिस. मतलब ये शो करता है कि हमको वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है. और जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 6 से छोटी होनी चाहिए ना. तो छोटी कैसे पता चलता है? कोई नंबर के छोटे या बड़ा आपको लिखना हो तो आप क्या करते हो, आप नंबर लाइन में कोई नंबर लोगे, उसके लेफ्ट साइड जाओगे तो छोटे नंबर मिलेंगे और उसके राइट साइड जाओगे तो बड़े नंबर मिलेंगे. तो हमको छोटे नंबर चाहिए बिकॉज x इज लेस देन 6. तो हमें ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला, इस साइड के सारे नंबर चाहिए, इस साइड के सारे नंबर. तो क्या आपको पता है नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग रियल x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, रियल x के लिए. तो 6 से छोटे जितने भी आपके रियल नंबर होंगे दैट विल बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट minus infinite and 6. So the solution set of x will be minus infinite to 6. दोनों ओपन इंटरवल में होंगे. माइनस इनफाइनाइट इस साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट में तो माइनस इनफाइनाइट होगा और इस साइड क्या होगा 6, और दोनों पे ओपन इंटरवल. हमेशा जब इंटरवल लिखते हैं तो स्मॉलर टू लार्जर लिखते हैं. माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटा होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में और कहां तक जाएगा ये 6 तक, और दोनों पे ओपन इंटरवल, ठीक है. सो लाइक दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर, लाइक दिस वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. एंड अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बताया, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से कर सकते हो लाइक दिस ओनली, ठीक है. अब देखो 12 11 12 13 out of 3 question, all question are very simple student, all questions are method are only same, सारे मेथड सेम, बस थोड़ा सिंपलीफाई करना है, ठीक है. तो मैं आपको क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं 11th बताता हूं. इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू द 11th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके. नाउ स्टूडेंट द 11th क्वेश्चन इज दैट 3x minus 2 upon 5 less than or equal to 5 2 minus x upon 3. अब देखो दोनों साइड जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वो एक तरह के फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, दैट इज x minus 2 upon 5 and 2 minus x upon 3. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना है स्टूडेंट, ठीक है. कभी कभी नेगेटिव भी होता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में करना ही नहीं, इतना याद रखना. वी विल नॉट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है. इक्वेशन में करते थे लेकिन इसमें नहीं करेंगे. अब करते क्या है ऐसी चीजों का, अगर आपको दोनों साइड फ्रैक्शन के टर्म्स दिखे, जैसे कि p/q इधर भी दिखे और p/q इधर भी दिखे, तो व्हाट यू विल डू, you will take the LCM of denominator, ठीक है. You will take the LCM of denominator and by the LCM of denominator you will multiply in both two sides. So what will be the LCM of 5 and 3? LCM of 5 and 3 will come 15, ठीक है. So what I am going to do, multiply 15 in both sides. Multiply 15 in both sides, ठीक है. और 15 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है. इनइक्वालिटी का साइन चेंज तभी होता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. तो 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो. सो 3x minus 2 upon 5 into 15 less than or equal to 5 2 minus x upon 3 into 15, ठीक है. सो 5 3s are 15 and 3 5s are 15, ठीक है. Now so 3 3s are what we will left, 3 3s are 9 into x minus 2 less than or equal to 5 5s are 25 2 minus x, ठीक है. अब सॉल्व करो इसको. सो 9x minus 18 is less than or equal to 50 minus 25x. अब फिर से वही चीज आ गया, दोनों साइड आपको x दिख रहा है तो एक साइड राइट साइड वाला x आप रिमूव कर दो. तो राइट साइड वाला x को रिमूव करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड, बिकॉज हियर इज माइनस ना, और मुझे इसको हटाना है तो मैं प्लस 25 दोनों साइड कर दूंगा अगर, तो ये रिमूव हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 9x minus 18 plus 25x,
इधर भी किया, और 50 माइनस 25x प्लस 25x, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 25x जो था नेगेटिव में था इसलिए प्लस किया, अगर प्लस में होता तो माइनस करते, ठीक है, और फिर से लिख लेना ब्रैकेट में एडिंग 25x इन बोथ साइड। अब देखो 9x एंड 25x विल बिकम 34x minus 18 which is less than or equal to minus 25x and plus 25x will be cancelled, so 50 will be left. Okay, now 34x minus 18 is less than or equal to 50, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट साइड में केवल हमको x ही चाहिए होता है, कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो हमें लेफ्ट साइड में x ही चाहिए होता है, तो मुझे इस माइनस 18 को हटाना है, तो माइनस 18 को कैसे हटाएंगे, अगर दोनों साइड प्लस 18 कर दे तो 34x माइनस 18 प्लस 18 इधर भी किया और प्लस 18 इधर भी किया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको हटाना था, तो माइनस 18 प्लस 18 विल बी कैंसिल्ड, सो हियर विल बी 34x which is less than or equal to 68, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें x ही चाहिए ना, तो हमें x ही चाहिए, तो अगर दोनों साइड में 34 से डिवाइड कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, सो 34x by 34 is less than or equal to 68 by 34, ठीक है, so 34 by 34 will be x only, less than or equal to 68 by 34 will be 2 only, means the value of x is less than or equal to 2, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से कम और 2 के बराबर होनी चाहिए। तो फिर से नंबर लाइन स्टूडेंट, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0 इधर होगा, here will be माइनस, एक्सट्रीम लेफ्ट पे माइनस इनफाइनाइट और एक्सट्रीम पॉजिटिव पे प्लस इनफाइनाइट। ये एरो का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट और इस एरो का मतलब होता है एक्सट्रीम राइट, तो 2 है ना, 2 यहाँ कहीं होगा, पॉजिटिव नंबर 2 यहाँ कहीं होगा, तो 2 से 2 के बराबर और 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सब चाहिए। क्यों हम लोग रियल नंबर ही ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हमको रियल एक्स के लिए ही सॉल्व करना था, ठीक है। सो वी वांट ऑल वैल्यूज विच इज आइदर लेस देन टू 2 और इक्वल टू 2, तो हमको इक्वल टू 2 भी चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए, तो 2 पे डार्क सर्कल होगा, 2 पे डार्क सर्कल का मतलब ये वैल्यू हमको इंक्लूड करनी है, और उससे छोटी सारे रियल वैल्यूज हमको लेने हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, ये सारे वैल्यूज सब कुछ लेंगे हम लोग, ऑल वी विल टेक, जितने भी रियल नंबर होंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक सब लेंगे। तो द सॉल्यूशन ऑफ x विल बी x बिलोंग्स टू, मैंने बताया था बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 एंड 2 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। 2 से छोटे और 2 के बराबर सारे रियल नंबर, तो 2 से छोटे सारे रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो हमेशा हम लोग इंटरवल लिखते हैं स्मॉलर टू लार्जर, तो पहले आएगा माइनस इनफाइनाइट। आप ऐसे मत लिखना, आप इसको ऐसे मत लिखना 2 टू माइनस इनफाइनाइट, ये मत लिख देना, ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि हमेशा हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो आप इधर से इधर जाओगे ना, तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो पहले क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट एंड देन 2, ये तो आप रिवर्स में चले गए, तो इस तरह नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी माइनस इनफाइनाइट टू 2, माइनस इनफाइनाइट पे ओपन एंड 2 पे क्लोज्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है। अब मैं 15 16 में से एक बता दे रहा हूं जिससे आपका ये 16 तक का पार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट यू नोट डाउन इट, आफ्टर दैट आई विल टेल यू 16 पार्ट। नाउ स्टूडेंट, द 16th question of your exercise 6.1 is that why I choose 16, because after 11 12 13 14 are same, 15 and 16 are of same type of question, so I am going to tell you 16 because it is little bit difficult than question number 15. So when I will tell you question number 16, then you can easily solve question number 15 because both are same, ठीक है। So now see student, what is the method to find the solution of an inequality? First, if there is a possibility to solve the LHS and RHS, then first you solve it. After that you see that what is coming in the left side and what is coming in the right side. Your priority is that you have to put only variable which you have to find the value
in the left hand side and in the right side only number should come. मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल आने चाहिए जिसकी वैल्यू आपको निकालनी हो और राइट हैंड साइड केवल नंबर आने चाहिए. तो पहला स्टेप ये होता है कि पहले जो एक्सप्रेशन दिया उसको आप सॉल्व करो और उसको मिनिमाइज करो. सो यहाँ पे तो सॉल्व करने लायक कुछ है ही नहीं. सो आई विल राइट लाइक दिस 2x minus 1/3. ठीक है, which is greater than or equal to. अब ध्यान दो, first we will solve this expression. So when we will solve this expression we can take LCM. So the LCM of 4 and 5 will be 20. ठीक है, so when 20 will be divided by 4, 5 will come, so 5 will multiply to 3x minus 2, and similarly when 20 will multiply divided by 5, 4 will come, so 4 will multiply to 2 minus x. ठीक है, so here will be the sign of implies. So 2x minus 1/3 is greater than or equal to, now LCM will be 20 only. Now it will be 15x minus 10. Now multiply this, so minus 8 plus 4x will come. Okay, now one more line. So 2x minus 1/3 is greater than or equal to 20. Now 15x and 4x. ठीक है, 15x and 4x will become 19x and minus 10 and minus 8 will become minus 18. So इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास दोनों साइड फ्रैक्शन टाइप का आ गया. अब ये तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं. अगर दोनों साइड फ्रैक्शन दिया हो तो इसके पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऐसा ही है, हो गया वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जैसा बन गया ये. अब क्या करोगे, एलसीएम का डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे तो द एलसीएम ऑफ 3 and 20 विल बी 60. ठीक है, द एलसीएम ऑफ 3 and 20 विल बी 60. एलसीएम ऑफ 3 and 20 विल बी 60. तो आप 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 60 in both sides what we will get, student? 2x minus 1/3 into 60 greater than or equal to 19x minus 18/20 into 60. ठीक है, now this will cancel 20 times and this will cancel 3 times. So here will come 20 in bracket 2x minus 1 greater than or equal to 3 into 19x minus 18. Now multiply it, so you will get 40x minus 20 greater than or equal to 57x minus 57x minus 54. Now again same method, we want x only left side, so I want to remove this 57x from right hand side, so I will subtract 57x in both sides. So I can write 40x minus 20 minus 57x here, which is greater than or equal to 57x minus 54 minus 57x. ठीक है, so now 40x minus 57x will become minus 17x. Minus 17x minus 20 will left in the left side, and here this 57x and 57x will be cancelled. So what it will be left, student? Only minus 54. Now I want only x in the left hand side, so I want to remove this minus 20 from left hand side. So I will add what? I want to remove this minus 20 now, so I will add plus 20 in both sides. So minus 17x minus 20 and plus 20 in this side as well as in this side. Okay, so this 20 will be cancelled. So minus 17x is greater than or equal to minus 34 will come. ठीक है, minus 34 will come. ठीक है, now what you do, you multiply. We want only x, positive x we want. So I am going to multiply. First I want to remove this 17. ठीक है, so I am going to divide by 17 by, I am going to divide this expression by 17 in both sides. Okay, so minus 17x by 17 and minus 34 by 17. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस फर्क कब पड़ता है, साइन में. साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज तब होता है जब
नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से डिवाइड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स विल कम एंड इन द राइट हैंड साइड माइनस 2 विल कम, ठीक है। इन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स विल कम, इन द राइट हैंड साइड माइनस 2 विल कम। Okay student, now I want to remove this minus sign. So what I am going to do, I am multiplying this inequality by minus 1 because I want to remove this minus sign because we want x in the left hand side only, okay. So by multiplying minus 1 in both side, here we left x and here we left 2, ठीक है। जैसे ही माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये x बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो अगर ये ऐसे है तो कैसे बदल जाएगा, वो बदल जाएगा इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू विल चेंज इनटू लेस देन और इक्वल टू। सो लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, इसीलिए साइन चेंज हुआ है। यहाँ पे जरूरी था लिखना क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखोगे तो माइट बी एग्जामिनर को डाउट होगी आपने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। सो बिकॉज माइनस एक्स वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, तो मुझे x चाहिए था, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मल्टीप्लाइड माइनस 1 इन बोथ द साइड, सो इट विल बिकम x और इट विल बिकम 2। माइनस एक्स में जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा और ये 2 बन जाएगा, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल आल्सो चेंज, दैट इज लेस देन और इक्वल टू। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो आप इसको सॉल्व कर लो आप। सो सी here will be 0, here extreme right plus infinite minus infinite and 2, x is less than or equal to, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, जहां भी स्लैक इनइक्वालिटी होती है मतलब कि वो वैल्यू हमको लेनी होती है, ठीक है। तो 2 हमको लेना है, मतलब कि x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटा, तो 2 यहाँ कहीं आएगा 0 के बाद, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। 2 पे आप डार्क सर्कल बनाओगे, डार्क सर्कल, और 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे लेने हैं आपको। तो मतलब कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट होगा 2 से छोटा वाला, दैट यू हैव टू टेक, ठीक है। ऑल पॉइंट्स विच इज लेस देन टू 2 यू हैव टू टेक। सो इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ दिस x विल बी माइनस इनफाइनाइट टू 2। सो दैट इज x will belongs to what, x belongs to minus infinite to 2 and in the 2 closed interval will be there because here is slack inequality, और जहां भी slack inequality होती है जो वैल्यू लिखी होती है x की वो भी लेनी होती है। x की वैल्यू आप खुद सोचो, x is less than और equal to 2, मतलब कि x की वैल्यू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इस डायरेक्शन में आएगा, और 2 के बराबर, और 2 के बराबर तो उस पर डार्क सर्कल। तो लिखते कैसे हैं, स्मॉलर टू लार्जर, माइनस इनफाइनाइट लेफ्ट में होगा तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद 2। इसका ये मतलब हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारी वैल्यूज x की होगी, इंक्लूडिंग 2 ऑल्सो। 2 भी होगा, और 2 से छोटा और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा जितने भी नंबर होंगे यू हैव टू टेक एज अ सोल्यूशन ऑफ x। आप या तो आंसर को ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो, और वर्ड में द सोल्यूशन ऑफ x इज माइनस इनफाइनाइट टू 2, ठीक है। बोथ आर सेम, either you will write x belongs to this or you will write the solution of x is this. So I hope it is clear to you. It is very important topic, and if you are able to solve this inequality now, then it will help you to find the domain and range of a function, because in concept of inequality is used in that chapter. Okay, so please student, whatever things I taught you, please go through it, and when you will see all parts, then you can easily solve this type of inequalities, okay. So from question 1 to 16 we have discussed. The remaining question, that is from 17 to 26, we will discuss in the next part of the video, okay. So till then students, have a nice day, take care, thank you.